میں ضلع کونسل ہال میں ڈپٹی کمشنر عمر میلا اور ڈی پی او اخلاق اللہ تارڑ کی مشترکہ صدارت میں ضلعی امن کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں عید الاضحیٰ اور محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ توبہ ٹیکسی میں عید الاضحیٰ اور محرم الحرام کے حوالے سے ضلعی امن کمیٹی کا اہم اجلاس ضلع کونسل ہال میں منعقد ہوا، جس کی مشترکہ صدارت ڈپٹی کمشنر عمر باس میلا اور ڈی پی او اخلاق اللہ تارڑ نے۔ اجلاس میں ضلع بھر سے امن کمیٹی کے ممبران، علماء کرام اور مختلف مکاتب فکر کے نمائندگان نے شرکت۔ اجلاس کے دوران عید الاضحیٰ اور محرم الحرام کے موقع پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فول پروف انتظام یقینی بنانے پر تفصیلی غور کیا گیا۔ ڈی پی او اخلاق اللہ تارڑ نے کہا کہ محرم الحرام میں جلوسوں اور مجالس کی سیکورٹی کے لیے خصوصی پلان تشکیل دیا جائے گا، جبکہ حساس مقامات پر اضافی پولیس نفری تعینات کی جائے گی۔ ضابطہ اخلاق پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر عمر میلا نے کہا کہ مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے علماء کرام اور امن کمیٹی کا کردار قابل تحسین ہے، جبکہ عید الاضحیٰ کے دوران صفائی ستھرائی، خلائشوں کی بروقت تلافی کے لیے مؤثر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ امن کمیٹی کے ممبران نے ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اجلاس کے اختتام پر ملک کی سلامتی، امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے اس عزم کا اظہار کیا کہ توبہ ٹیکسی میں پرامن ماحول کے قیام کے لیے تمام ادارے متحد ہیں۔ کراچی میں رہائشی پلاٹوں کو کمرشل کیٹیگری میں تبدیل کرنے پر پابندی ختم ہونے کے وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے کا چیئرمین کنزیومرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کوکب اقبال نے خیر مقدم کیا۔ انہوں نے فیصلے کو کراچی کی ترقی، کاروباری سرگرمیوں کے فروغ اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے اہم قرار دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کوکب اقبال نے کہا، اس فیصلے سے جائیداد کی قیمتوں میں اضافہ اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں سخت ریگولیٹری نظام نافذ کیا جائے تاکہ عوام کے اربوں روپے محفوظ رہ سکیں۔ انہوں نے کہا، بلڈرز کی جانب سے براہ راست بکنگ پر پابندی، سرکاری نگرانی اور سیکیورٹی رقم جمع کروانے جیسے اقدامات ضروری ہیں۔ ملک میں بڑھتے ہوئے ریئل اسٹیٹ فراڈ کو روکنے کے لیے مؤثر قوانین ناگزیر ہیں۔ مزید کہا، رہائشی علاقوں میں غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں کو روکنے کے لیے واضح قانون سازی کی جائے۔ کہرور پکا میں گرمی کی شدت بڑھتے ہی شہر بھر میں روایتی ٹھنڈے مشروبات کی بہار آ گئی۔ سورج کی تپش اور چلچلاتی دھوپ نے جہاں شہریوں کو بے حال کر دیا ہے، وہیں مختلف بازاروں، چوکوں اور شاہراہوں پر جگہ جگہ سردائی کے اسٹال سج گئے ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں کہرور پکا سے حسنین خان رند کی یہ رپورٹ۔ کہرور پکا میں گرمی کی شدت بڑھتے ہی شہر بھر میں روایتی ٹھنڈے مشروبات کی بہار آ گئی۔ سورج کی تپش اور چلچلاتی دھوپ نے جہاں شہریوں کو بے حال کر دیا ہے، وہیں پر مختلف بازاروں، چوک چوراہوں اور مختلف شاہراہوں پر جگہ جگہ سردانی کے اسٹال سج گئے ہیں، جہاں شہریوں اور راہگیروں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شدید گرمی سے بچنے کے لیے لوگ بادام، سات مغز، کالی مرچ، خشخاص اور دیگر دیسی اجزاء سے تیار ہونے والی روایتی سردانی کا استعمال کر رہے ہیں، جو نہ صرف جسم کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے بلکہ گرمی کی شدت کو کم کرنے میں بھی مددگار سمجھی جاتی ہے۔ کہرور پکا کے مختلف علاقوں میں سردانی فروش صبح سے رات گئے تک مصروف دکھائی دیتے ہیں، جبکہ شہری بڑی تعداد میں ان اسٹال کا رخ کر رہے ہیں۔ ٹھنڈی اور خوش ذائقہ سردانی گرمی سے نڈھال لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مصنوعی مشروبات کی نسبت دیسی سردانی صحت بخش اور توانائی فراہم کرنے والی روایت ہے، جو کئی برسوں سے گرمیوں کا حصہ چلی آ رہی ہے۔ سردانی فروشوں کے مطابق گرمی بڑھتے ہی ان کے کاروبار میں واضح اضافہ ہو رہا ہے اور روزانہ سینکڑوں افراد سردانی پینے آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بادام اور دیسی مثالوں سے تیار کی جانے والی یہ مشروب جسمانی کمزوری دور کرنے اور ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ کیمرہ ٹیم وارث خان کے ساتھ حسنین خان رند، NTN نیوز، کہرور پکا۔ خانیوال میں تھانہ صدر پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن جاری۔ ڈی پی او محمد عابد وڑائچ کی ہدایت پر کارروائیاں تیز کر دی گئی۔ شراب کی چالو بھٹی پکڑ لی گئی، ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ خانیوال سے شیخ سہیل کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ خانیوال پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن جاری۔ ڈی پی او محمد عابد وڑائچ کی سربراہی میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری، شراب فروش گرفتار کر لیا گیا۔ خانیوال تھانہ صدر پولیس نے شراب کی چالو بھٹی پکڑ لی، ملزم گرفتار۔ اڈا میرشا کے قریب سرچ آپریشن کیا گیا، پولیس کی بڑی کامیاب کارروائی۔ ملزم زاہد عرف سونو سے کچی شراب، چالو بھٹی اور 12 بور رائفل برآمد کی گئی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی پی او محمد عابد وڑائچ کا کہنا تھا کہ
मंशियात फरोशों का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह है। मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां इसी तरह जारी रहेंगी। कैमरामैन टीम के साथ शेख सुहेल, नुमाइंदा NTN न्यूज खानेवाल। जिला घोटकी में 4 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलियो मुहिम 18 से 21 मई तक जारी रहेगी, जिसका बाकायदा इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद ने किया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देख लेते हैं प्रेमचंद राजपूत की इस रिपोर्ट में। जिला घोटकी में 4 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलियो में 18 से 21 मई तक जारी रहेगी, जिसका बाकायदा इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर घोटकी मनोज किरानी ने किया, जिन्होंने PPHI सेंटर मीरपुर माथुल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। अवाम में आगाही के लिए एक रैली भी निकाली गई। तकरीब में DHO डॉक्टर राव आफ्ताब, स्टाफ ऑफिसर डॉक्टर जहीर टोमकी, DM PPHI आरफ अब्बासी, WHO और डॉक्टर नियाज और यूनिसेफ के डॉक्टर रहम गडानी समेत दीगर मुतल्लिका अहकाम ने भी शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि पोलियो एक खतरनाक मर्ज है जो बच्चों को हमेशा के लिए माजूर कर देता है, ताहम इसका मुकम्मल खात्मा बर वक्त कतरे पिलाने से मुमकिन है। इन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो हर मुहिम के दौरान अपने 5 साल तक के तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने को यकीनी बनाएं। उन्होंने DHO को हिदायत की कि वो जिले भर में फील्ड टीमों, ट्रांजिट पॉइंट्स और फिक्स की मौसर निगरानी करें ताकि कोई बच्चा इस मुहिम से महरूम न रहे। कैमरामैन के साथ NTN न्यूज रिपोर्टर प्रेमचंद और राजपूत, मीरपुर माथिल। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तोफैल और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक ने असिस्टेंट कमिश्नर चीचा वतनी जावेद मुमताज़ के हमरा नवाज शरीफ पार्क और मरकज़ी कब्रिस्तान का दौरा किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीचा वतनी पार्क में ज़ेरे तमीर पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वाटर टैंक के काम का मायना किया गया। म्युनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर कचर रिजवान अहमद मार्थ ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बारिश के पानी को जखीरा करने और वाफर पानी को टरबाइन के जरिए नहर बार में डालने के मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। कमिश्नर ने मुतल्लिका काम को हिदायत की कि काम की रफ्तार बढ़ाई जाए और मेयार पर कोई समझौता ना हो। इन्होंने कहा कि वाटर टैंक की तकमील से बारिश का पानी स्टोर करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पार्क में सफाई सुथराई के इंतजाम और शहरियों के लिए तफरी सहूलियात का तफसीली जायजा भी लिया गया और शहरियों से बातचीत करते हुए इनकी राय मालूम भी की गई। कमिश्नर ने सफाई की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। अफसरान ने चीचा वतनी के मरकजी कब्रिस्तान का दौरा करते हुए सफाई और इंतजाम का मायना किया। मुतल्लिका अमले की कारकर्दगी चेक की गई और हिदायत की गई कि कब्रिस्तान में मुकम्मल सफाई, घास की कटाई, कूड़े क्रिकेट को बर वक्त उठाकर यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन कलीमुल्लाह के साथ मियां इरफान, NTN न्यूज चीचा वतनी। टोबा टेक सिंह के जनरल बस स्टैंड के करीब सड़क की तामीर के दौरान यू टर्न की अदम मौजूदगी शहरियों के लिए बड़ा मसला बन गई है, जिससे रोजाना ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। टोबा टेक सिंह में सड़क की तामीर के दौरान जनरल बस स्टैंड पर आने वाली गाड़ियों के लिए मुनासिब यू टर्न न देने से ट्रैफिक मसाइल में इजाफा हो गया। शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक सड़क बनाने वाले इंजीनियर की नाकस मनसूबाबंदी के बायस गाड़ियों को रेलवे फाटक के करीब जाकर यू टर्न लेना पड़ रहा है, जिससे इलाके में शदीद ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। तो गुलिस्तान होटल के सामने एक ट्रक था, कार्नर था, यू टर्न था, वो लिहाजा उन्होंने बंद कर दिया है, जिसकी बिना पे अब जो गाड़ियां गोजरा से रजाना से आती हैं वो आगे रेलवे फाटक के पास से टर्न करेंगी। उस दौरान जब फाटक बंद होता है तो मजीद इतना रश होता है कि हादसा का ज्यादा से ज्यादा अंदेशा बनता है। बराए करम इस चीज पे नजरसानी की जाए, उस चीज को बिल्कुल क्लियर किया जाए, वो दोबारा ट्रक बहाल किया जाए। और दूसरा जो ट्रक है अटक पेट्रोल पंप के सामने था, वो भी उन्होंने बिल्कुल अपना नादरा ऑफिस के सामने ले गए। वो बहुत दूर हो गए, शहरियों के लिए बहुत ज्यादा दुश्वारी है। जो कनार रोड से आते हैं उनके लिए भी बहुत दुश्वारी है, क्योंकि इसी अगर ये ट्रक बंद होने की वजह से लोग अपोजिट साइड से आना शुरू हो गए। बस स्टैंड आने वाली बड़ी गाड़ियों, मुसाफिर बसों और दीगर ट्रैफिक को रोजाना मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जबकि रेलवे फाटक के करीब गाड़ियों का रश शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों ने मुतालबा किया कि जनरल बस स्टैंड के करीब फौरी तौर पर मुनासिब यू टर्न बनाया जाए ताकि ट्रैफिक का दबाव कम हो सके और रोजमर्रा सफर करने वाले अफराद को रिलीफ मिल सके। शहरियों का कहना है कि नाकिस प्लानिंग की वजह से ट्रैफिक मसाइल मजीद बढ़े हैं और मुतल्लिका हुकाम को फौरी नोटिस लेना चाहिए। पाक वतन का सबूत दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हो गया। मेजर तौसीफ अहमद भट्टी बलोचिस्तान बार खान ऑपरेशन में शहीद हुए। शहीद का नमाज जनाजा DPO ग्राउंड
पाक पतन में अदा कर दिया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैफ खान की इस रिपोर्ट में। पाक पतन शहीद मेजर तौसीफ अहमद भट्टी के जस्ते खाकी को पाक फौज के दस्तों ने सलामी दी। जनाजे में पाक फौज, पुलिस, ज़िलाई इंतज़ामिया, सियासी, समाजी और अवामी हलकों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद मेजर तौसीफ अहमद भट्टी के ख़ानदान में अहलिया, एक बेटा, एक बेटी और वालदैन हैं। शहीद की शहादत पर अहले खाना, दोस्त अहबाब और अहले पाक पतन का सर फ़ख्र से बुलंद। शहरियों की जानब से पाक फौज और शहीद की मैयत पर गुलपाशी की गई। शहीद को उनके अब्बाई कब्रिस्तान शहीद नगर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा सैफ खान डुड्डी, NTN न्यूज़, पाक पतन। मुल्क भर की तरह हैदराबाद के शहरी भी महंगाई की लहर से शदीद मुतासिर हैं। अशाए खुरोनोश की बढ़ती कीमतों ने गरीब और मुतवस्सित तबके की कमर तोड़ कर रख दी है। मजीद अहवाल आकिल खान की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह हैदराबाद के गरीब और मुतवस्सित शहरी भी मुल्क में जारी महंगाई की लहर से 2 वक्त की रोटी खाने से माजूर हो चुके हैं। हैदराबाद में मुर्गी का गोश्त, सब्जियां, मसालाजात, दालें, शक्कर, आयल, घी और दीगर अशिया जरूरिया सब अशिया को महंगाई के पड़ लग चुके हैं, जो गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। बिलखसूस आटे की अगर बात की जाए तो हैदराबाद में आटा 1260 से 1300 रुपए फी 10 किलो फरोख्त किया जा रहा है। NTN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शहरियों ने महंगाई की दुहाई देते हुए कहा कि दिन ब दिन जो बढ़ रही हैं, 419 रुपए लीटर पेट्रोल चल रहा है। बहुत कम दिनों के अंदर इन्होंने पेट्रोल की कीमत आसमान पे पहुंचा दी, जिसका असर इतना खतरनाक है लोगों के ऊपर। उसकी वजह से आटा आप देख लो हमारी पहुंच से दूर हो गया, 1300 रुपये का आटा पहुंच गया। ठीक है, आप सब्जी ले लो 350-400 रुपये से कम सब्जी नहीं है। चिकन देख लो 700 रुपये किलो पे पहुंच गई है। क्या खाएगा बंदा, क्या करेगा? हर गरीब इंसान बहुत मजबूर, बड़ा परेशान, बेबस हो गया है। तो मेरी अपील सिर्फ यही है गवर्नमेंट से कि खुदारा लोगों को इस परेशानी से बचाएं और इस महंगाई को थोड़ा कंट्रोल करें, ताकि लोग जो है ना खुशहाली से अपनी ज़िंदगी जी पाएँ। कम से कम गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी अपनी सुकून से खा पाए। महंगाई तो सब चीज़ों पर है, महंगाई है, इफेक्ट कर रही है, आम आदमी को बहुत इफेक्ट कर रही है। क्योंकि 500 रुपये लीटर मेरे जैसा बंदा डेली का चलाएगा तो 15,000 रुपये कंज्यूम होते हैं। और भी चीज़ों पे इफेक्ट होता है, आटा है, सिर्फ तेल है, घी, चीनी, पत्ती, सब चीज़ों पे इफेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया आटा। अक्सर एक आदमी है 10 किलो आटा जो ले रहा था वो 5 किलो पर आ गया ऑन एंड ऑन एवरेज। जाहिर सी बात है महंगाई है इस वजह से। बिल्कुल हुकूमत से अपील करते हैं कि इसको कंट्रोल करे, प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए। महंगाई है, नहीं अफोर्ड कर पाते हैं लोग, तो नज़रसानी की जाए इन चीज़ों पे, महंगाई के ऊपर खासकर। पहले चल रहा था 500, 550, 600, ये रेट ऊपर नीचे आता रहा है। 700 चल रहा है, अभी तो ऊपर रेट आया, अभी 700 पे ऊपर भी जा सकती है मुर्गी, पता नहीं है रेट का। रेट इतना ऊपर हुआ है, गरीब तो कोई खा नहीं सकता, ना बाजार है ना कुछ है, आपके सामने जो रेट है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हुए कहा है कि फिलफौर महंगाई के तूफान पर काबू पाया जाए, ताकि गरीब और मुतवस्सित तबका सुकून का सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ आकिल खान, NTN न्यूज़। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब शाहिद जमान का डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद के हमराह तहसील रेनाला खुर्द का दौरा। इस मौके पर MPA चौधरी जावेद अलाउद्दीन समेत दीगर मुतालिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। मजीद जान लेते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदे मुश्ताक अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब शाहिद जमान लाख का डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद के हमरा तहसील रेनाला खुर्द का दौरा। उस मौके पर MPA चौधरी जावेद अलाउद्दीन समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर मोहम्मद रिजवान की AC ऑफिस में PDP प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जारी तरक्याती कामों का जायजा, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक की तरक्याती काम और मटेरियल की चेकिंग, PDP प्रोजेक्ट्स के लिए ज़ेर इस्तेमाल पैप की फैक्ट्री का भी मुआयना किया। उस मौके पर PDP प्रोग्राम स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शाहिद जमान लाख का कहना था कि तरक्याती प्रोग्राम खिते की तकदीर बदलने और इलाकाई तरक्की के लिए संगे मेल की हैसियत रखता है। मनसूबों की तकमील से शहरियों को बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज पर मुयस्सर आएंगी। मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक से बारिशी पानी के नकाए
نکاسی کا دیرینہ مسئلہ حل ہوگا. ان کی بدولت معاشی سرگرمیوں میں بھی تیز رفتار اضافہ ہوگا. منصوبوں کی شفافیت اور اعلیٰ معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. شیخ زمان لاکھ کا کہنا تھا تمام منصوبے مقررہ ڈیڈ لائن کے اندر کام کیے جائیں گے. فنڈز کا بر وقت استعمال اور کام کی رفتار کو تیز کرنا اولین ترجیح ہونا چاہیے. آخر میں اسپیشل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے کہا کہ اس سلسلہ میں کسی بھی قسم کی غفلت یا تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی. کیمرامین ٹیم کے ساتھ مشتاق بھٹی، NTN نیوز، رینالہ خورد. علاقائی خبروں سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز.